And I feel that the songs that we sing, if we sing it with the meaning and with our hearts, probably there may not be need for a message. जब भी हम इस तरह के गीत गाते हैं, अगर इस शब्द को समझ के, इसको जान के, समझ शक्ति के साथ हम गाएं, तो कभी अनुवाद संवाद देने की जरूरत नहीं पड़ती. And while singing, if those words and the meaning is not there in your heart, if you repent and then sing that song, it will be even more effective. अगर आपने पश्चाताप करके उस शब्द को अपने हृदय में लेके उसको समझ के पश्चातापी होके अगर गाया, तो और भी आपके लिए वो प्रभावशाली होगा. And therefore, singing in the house of God or singing to the Lord is considered a wonderful thing. इसलिए परमेश्वर के भवन में गाना, परमेश्वर के लिए गाना, ये अद्भुत है. It shows forth your joy and your happiness in the Lord. आपके आनंद और खुशी जो प्रभु में है वो दिखलाता है. When the psalmist says, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord, people come to the house of God with great gladness and joy. भजनकार कहता है कि जब किसी ने मुझे परमेश्वर के भवन में आने को कहा, मेरा हृदय उत्साह से भर गया, और लोग जब प्रभु में घर में आते उत्साहित होते हैं. And therefore it is good to sing songs to the Lord. इसलिए अच्छा है कि भला है कि हम परमेश्वर के लिए गाएं. All of us sing. हम लोग सब गाते तो हैं. Some may not be very good in singing. हम किसी को गाना ढंग से हम नहीं गा पाते. I don't call myself as singing, I call myself as pro sing. So in the congregation we can all join together and sing. लेकिन हम परमेश्वर के भवन में एक साथ मिल के हम गाते हैं. So our melody improves. और हमारे जो गुण है वो अच्छा रहता है. So I would encourage all of us to sing with your heart. इसलिए मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप गाएं, अपने हृदय से गाएं. And these days it is available in the YouTube, the Songs of Zion. You can at home listen to it and try to understand it and learn it. इन दिनों YouTube में ये सियोन के गीत होते हैं, वहां पे आप उसको सीख के गा सकते हैं. It is a great joy to sing unto the Lord all the time. अद्भुत बात है, कितनी आनंद की बात है, हम हमेशा प्रभु के लिए गाया करें. The word of God tells us, sing hymns to yourself. और प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप के साथ आप प्रभु के लिए ये हिम्स गाएं. For your own self you keep singing. आप खुद के लिए भी गाया करें. So that you are constantly remembering the goodness of the Lord. इसलिए बार-बार आपके परमेश्वर की भलाई को आप याद कर पाएं. So for today's meditation we'll just see a few portions. आज के अध्ययन के लिए, मनन के लिए कुछ भाग को हम देखेंगे. The Sekran has covered a little bit. भाई शेखरन ने इसमें कुछ भाग को उसने बांटा है. And in the worship also we have read one or two verses in reference to whatever the Lord has given to me also to speak. ये उपासना के सेवा में भी एक दो वचन बांटा गया जो प्रभु ने मुझे भी दिया था. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. 2 कुरिन्ती 2 अध्याय के 14 पद. दो सौ कुरिन्ती 2 अध्याय के 14 पद. We can all read it together. हम लोग सब मिलके पढ़ेंगे इस भाग को. 2 कुरिन्ती 2:14. Now thanks be unto God, तो परमेश्वर causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of His knowledge by us in every place. हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है. And then we can read Romans chapter 8. रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय. We can read from verse 35 to 39. 35 से 39 पद तक. We'll all read it together. हम लोग सब लोग एक साथ पढ़ेंगे. रोमी 8 अध्याय 217 पेज पे है. 35 से 39 पद तक सब मिलके पढ़ेंगे. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril of sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. In all these things we are more than conquerors for him that loved us. For I am persuaded that neither death,
nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए और प्रभु आपके खून के द्वारा खरीदे हुए लोगों के लिए जो प्रभु आपके भवन में मौजूद हैं। यार प्रभु मैं भी एक तुच्छ पापी हूं जिस पर प्रभु आपने रहम किया और प्रभु उद्धार दिया है। मैं इस लायक हूं नहीं कि प्रभु यहाँ पर खड़े होकर के संदेश दे सकूं, इसलिए प्रभु मैं अपने आप को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के दिन लाता हूं। मुझे धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें और प्रभु इस योग्य बनाएं कि मेरे होठों में प्रभु आप शब्द दें, उच्चारण दें, मनुष्य को छिपाए रखें और प्यार प्रभु सामर्थ दें और हिम्मत दें। हम सबों को प्रभु आप अपने अनुग्रह में ढांक के रखें, हमारे विचारों को यीशु मसीह में केंद्रित रखें। हमें से कोई भी प्रभु यहाँ पर से व्यर्थ खाली ना जाए। आपस में मसीह के प्रेम को प्रभु हम और अधिक समझ सकें और प्रभु आपके नाम को महिमा लाने का कारण बने और आशीष पाएं। सबों को प्रभु आपके प्रेमी हाथों में सौंप देते हैं। आप अनुवाद में भी हमारी मदद करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Sometimes it is really difficult to know what is to be ministered. कभी-कभी ये सेवा में क्या वचन देना है उसके बहुत मुश्किल हो जाता है। So you keep on thinking, contemplating, Lord, what is it that we can give? और प्रभु उसके लिए हम बार-बार सोचना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है कि प्रभु से पूछना पड़ता है प्रभु क्या चाहते हैं कि Sometimes I should admit that I say, Lord, should I stand there empty-handed? कभी-कभी मैं ऐसे बोलता हूँ क्या प्रभु मैं खाली हाथ वहां पे खड़ा हो जाऊं? So the Lord helps when the church also prays for those who minister the word of God. इसलिए जब जो प्रभु के वचन की सेवा करते हैं और जब सारी मंडली उनके लिए प्रार्थना करता है तो उनको प्रभु को सहायता पहुंचाता है। When you pray for somebody, then you are earnestly waiting also to hear. जब आप किसी के लिए प्रार्थना निरंतर करते हैं तो आप उसके लिए प्रतीक्षा भी करते हैं कि जब वो बोलते हैं। One of the most important things in a Christian life is to grow in maturity. जब मसीह जीवन में एक बड़ा अनिवार्य बात यह है, महत्वपूर्ण बात है कि वो परिपक्वता में बढ़ते जाएं। If there is a family and there are parents, parents correct the children. एक परिवार में अपने माता पिता बच्चे को सिखाते हैं, समझाते हैं। And they get angry, they beat, they do all that is required in order to make the children mature enough. और ये गुस्सा करते हैं, उनको डांटते हैं, पीटते हैं ताकि वो बच्चे परिपक्व हो जाएं। Because the desire is towards the children to do the best for them. क्योंकि ये माता पिता का हर एक अपने बच्चों की इच्छा होता है कि वो अच्छे हो। And therefore when we read the scriptures, when we see some promises, we think that everything will be very good. जब हम प्रभु को वचन देख के कोई प्रतिज्ञा देखते हैं हमें लगता है सब कुछ बढ़िया भला होगा। Everything will be very smooth and very nice. The Lord will bless us. प्रभु आशीष देगा, सब कुछ साधारण आसान होएगा। But we forget the other part where the Lord says, I will chastise you, I will chasten you, I will correct you. अगर हम दूसरे भाग को भूल जाता है कि प्रभु बोलता है कि मैं तुझे ताड़ना दूंगा, मैं तुझे लाठी लगाऊंगा। So the Lord is interested in also correcting us wherever, whenever required. इसलिए प्रभु इसमें भी ध्यान देता है कि हमें जब भी ये ताड़ना चेतना देना होता है तो वो देता है। Remember, once the Lord has purchased us with His precious blood, nobody can snatch us out of His hands. आप एक बात ध्यान दें कि जब प्रभु ने अपने लहू से हमें मोल लिया है तो कोई भी वो अपने हाथ से छुड़ा नहीं लेता। I often try to give this example. मैं हमेशा ये उदाहरण को देता हूँ। If a child is born, जब बच्चा पैदा होता है, you never know what kind of a child it would be. आप नहीं बता सकते कि वो बच्चे बाद में बड़े होकर कैसा होगा। And then if the child is born with the handicapped nature, अगर उसके मानो वो थोड़ा कुछ अंगों उसका काम नहीं कर रहा है, अपंग है, वो अपाहिज है, but he continues to remain on record as the children of Swanson so and so. लेकिन वो रिकॉर्ड में पेपर में इसके
बच्चे ही होगा, लिखा हुआ होगा। Until death, it will be known that so and so is the child of so so father and so and so mother. हाँ, जब तक वो बच्चा मर नहीं जाता बूढ़े होके, तब तक वो कहता है कि इनके इनके ये बेटा या बेटी है। And even after death, when they talk about it, they'll say this is the father and this is the mother, it is their child. वो इंसान मरने के बाद भी यो ऐसा इंसान ये इनके बेटा या बेटी थे। Similarly, our heavenly Father has made us his children इसी प्रकार से हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें अपने बच्चे बनाया है। by sending his only son Jesus Christ to die on the cross to pay the penalty for our sins and to make us his children. हमारे स्वर्गीय पिता ने अपने स्वयं अपने पुत्र को संसार में दिया, हमारे पापों के मरने वो मारा गया, इसलिए हम उसके बच्चे बन गए। All those who confess their sins, invite Jesus Christ into their hearts and accept him as the Lord and their Savior, their lives are changed. हाँ, इसलिए जितनों ने भी परमेश्वर को स्वीकार किया, अपने हृदय पाप को माना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लिया, वो परमेश्वर के संतान हो गए। And the moment you become his children, जब आपका संतान जब हो गए, it is you and the Lord between whom this relationship is established. तब आप और प्रभु के बीच में ये संबंध बन जाता है। And then when you meet all such people who have had that relationship, जब आप ऐसे और लोगों जो इसी संबंध में उनसे मिलते हैं, those who have the relationship with the Heavenly Father, जिसका ये संबंध प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के साथ है, who acknowledge that Jesus Christ is their Savior, और जिसको ये सिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा उद्धारक है, they all tend to love one another. और वो लोग एक दूसरे के लिए प्रेम करने लग जाते हैं। They love them with their heart. और अपने हृदय से वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। So they say that the relationship of the blood is closer than the water. ये कहते हैं कि जो लहू का जो वो जो संबंध है, रिश्ता है, जो पानी से बड़ा है। It is greater than any other relationship in the world. जो लहू का जो संबंध है, कोई और संबंध में से बड़ा ज्यादा मजबूत है। And therefore the relationship that we have Christ is a blood relationship. इसलिए प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना हमारे लहू का संबंध है। His blood has purchased us. उसके लहू ने हमें मोल लिया है। So therefore all of us need to exhibit, practice that love amongst ourselves. इसलिए हमें अनिवार्य है कि एक दूसरे के साथ इस प्रेम को दिखाएं। That is the song that we sung in the Nepali. यही हम नेपाली गाना में अभी गा रहे थे। Let us all love one another. हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें। Continue in the love of the Lord. और परमेश्वर के प्रेम में लगे रहें। The love with which he has loved us, we might love him and love one another. जिस प्रेम से प्रभु यीशु मसीह में हमने प्रेम किया, उसी प्रेम से हम प्रभु को और प्रभु के लोगों को प्रेम कर सके। Now let us turn to Proverbs chapter 3. इसलिए नीति वचन 3 अध्याय में आते हैं। We'll read one or two verses. नीति वचन 3 अध्याय। Proverbs chapter 3 verses 11 and 12. नीति वचन 3 अध्याय 11 और 12। पेज नंबर 769 पे है, 769। 3, 11, 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उससे उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। Despise not the chastening of the Lord. यहोवा की जो शिक्षा से मुंह न मोड़ना, neither be weary of his correction. और उसके डांट से तू बुरा न मानना। Whomsoever the Lord loves, जिससे प्रभु प्रेम रखता है, he corrects. वो उसको ताड़ना देता है। Blessed are those children of the Lord who love correction. और एक लोग धन्य हैं ऐसे प्रभु के लोग जो परमेश्वर को ताड़ना को मानते हैं। And the Lord corrects us through various means and methods. और प्रभु हमें तरीके से ताड़ना देता है। The biggest and the best example is of Job. सबसे अच्छा उदाहरण है अय्यूब का। We may not be able to completely comprehend why the Lord permitted. हमें ये बात पूरी तरह से हम नहीं समझ पाएंगे कि अय्यूब को ऐसे भयंकर स्थिति में प्रभु क्यों ले गया। That is the best example that the humankind can have on God's way of dealing with the child of God. एक पूरे मनुष्य जाति के लिए एक अय्यूब का जीवन एक सबसे अद्भुत उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है कभी। It is amazing. ये अद्भुत बात है। And what does Job have to say? और अय्यूब को इस बात में क्या कहना था? See Job 23 verse 10. अय्यूब 23 अध्याय के 10 पर।
अय्यूब 23 अध्याय के 10 पर 631 पेज नंबर पे। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। What does the Lord say over here? What does the words say over here? यहाँ पे क्या लूत ने बताया? When he hath tried me, I shall come forth as gold. जब मुझे वो ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। Now, all of us have different trials in life. हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। It could be failure, और ये हार की जीवन है, it could be disappointment, और दुख की जीवन है, it may be that you are not getting what you want. और कभी हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो आपको नहीं मिल रहा है। Maybe you are not having an employment. हो सकता है आपको काम काज नहीं है, नौकरी नहीं है। There could be so many things in life बहुत सारे ऐसी बातें हमारे जीवन में हो सकती because of which you may be dejected, or we can use the word depressed. और हो सकता है कि इस वजह से आप निरुत्साहित हो, और कह सकते कि आप डिप्रेस्ड हो। But a child of God, आप प्रभु के बच्चे हो। the word of God says प्रभु का वचन कहता है, in the life and example of Job, अय्यूब के जीवन को देखते हुए, when I am tried, I will come forth as gold. जब मैं मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। And see what James says. याकूब क्या याकूब क्या कहता है बता, हम देखेंगे। याकूब Chapter 1, 1 अध्याय पेज नंबर 318। 1, 2, 3 and 4. हाँ, याकूब 1 अध्याय 1, 2, 3, 4। Yes. परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन बाहरों गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। All of us would like to reach this state where we can say we want nothing more. हम इस सब लोग इस स्तर पे आना चाहते हैं जहां हम कह सके अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और Now I'm fully satisfied and content. मैं सब कुछ में एकदम संतुष्ट हूँ। There's nothing that I want. अब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। All of us would like to reach that stage. हर लोग हमें इस स्तर पे पहुंचना चाहते हैं। For that we have a lot of ambitions, we struggle a lot. बहुत सारे समस्याएं, हमें संघर्ष करना पड़ता है। We toil a lot, we sweat a lot. हम लोग उसमें मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। Whether it's rain or summer or winter or any climate, any conditions. जाड़े में और ठंड में, गर्मी हो, सब कुछ, किसी भी समस्या समय पे that you may be perfect and entire, wanting nothing. हालांकि हम सिद्ध हो जाए और हम कैसे पहुंच सके अब मुझे कुछ चीज की जरूरत नहीं है। For this, James is writing to the 12 tribes of Israel. ये याकूब जो है इस्राएल के 12 गोत्रों को लिख रहा है बात। He says, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations." और यहाँ पे कहता है कि मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Your trials and your temptations and your problems are different kinds, which is regarding the trying of your faith. Count it, take it with patience. ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने पर धीरज उत्पन्न होता है। And this patience, when it is complete, it makes you perfect, entire, wanting nothing. अब धीरज अपना जब पूरा करने दो, तब जब ये सिद्ध हो जाओ, तब तुम किसी बात की घटी ना रहे। You have to count it all joy when you fall into such diverse temptations. ऐसे नाना प्रकार के विभिन्न समस्याएं परिस्थिति में जब हम पड़ते हैं, हमें इसको आनंद से लेना है। It is not easy. ये आसान बात तो नहीं है, but it is possible because the Lord Jesus Christ himself is commanding us. क्योंकि ये संभव है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद हमें ये बात बतला रहे हैं। Lord Jesus Christ himself gives the example of Job in the book of James. इसलिए ये अय्यूब का जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह याकूब के किताब में देता है। Patience, धीरज। Patience to what extent? किस स्तर तक, किस हद तक धीरज? Till he was willing to give his very life.
वो तब तक जो अपना जीवन को वो देना चाहता था। All of us who love the Lord, जो हर कोई हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं, before taking baptism, बपतिस्मा लेने से पहले we ask some questions. हम उनके सवाल पूछते हैं। Are you prepared to lay down your life for the Lord? क्या अगर ऐसा समय आए कि आप प्रभु के लिए जीवन आपको देना पड़े, आप अपना जीवन दे सकते हो? You immediately, with great joy, say, yes, I will. उस समय आप बोलते हो कि हाँ मैं दूंगा, But then slowly and slowly, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता the things of this world make inroads into life. इस संसार के चीजें हमारे जीवन में आने लग जाता है, And then our priority goes on diminishing. और हमारी जो प्राथमिकता हो वो हटता चला जाता है, घटता चला जाता है। And that's why the word of God always tells us, remember the first love. इसलिए परमेश्वर के वचन को हमेशा हमें याद दिलाता है, अपने पहले प्रेम को याद रखो। And never forget the love with which the Lord has loved us. और उस प्रेम को, जिस प्रेम ने प्रभु ने तुमसे प्रेम किया, उसको कभी ना भूलो। Let us turn to Job chapter 5, 17 to 19. अय्यूब 5 अध्याय 17 से 19 पर। Job chapter 5 verses 17 to 19. हाँ, ये पेज नंबर 612 पे है, अय्यूब 5 17 से 19। देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी मारता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। 19. वो तुझे 6 विपत्तियों से छुटाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। He will keep on delivering you. वो आप हमें छुटकारा देते रहता है in all your troubles, in all your afflictions. हमारे हर समस्या परिस्थितियों में। He will deliver us. वो हमें छुटकारा देता रहता है। See in Psalm 34, Psalm 34. भजन संहिता 34 अध्याय, read verse 17. 34 अध्याय के 17 पर, भजन संहिता 676 नंबर पे है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुटाता है। He delivered them from all their troubles. सब विपत्तियों से छुटाता When है। the Lord says all, it means all the trouble. जब प्रभु कहता है कि सब, तो सब है। There is nothing that he will leave in between. ऐसा कुछ भी नहीं जो उसको प्रभु छोड़ देता है। The righteous cry and the Lord heareth. जब धर्मी दुहाई देते हैं तो प्रभु उनकी सुनता है। And he delivers them from all their troubles. और उनकी सब समस्याओं से, विपत्तियों से उसको These छुटाता are the words of the Lord. ये परमेश्वर के वचन हैं। Let us bind it in our heart. हम इसको हृदय में रखें इसको, and keep on crying to him. और उसको परमेश्वर को दुहाई देते रहें। Lord, I will never get tired of crying unto thee, my creator. प्रभु तू मेरा सृष्टि करता है, मैं तुझे दुहाई देने में कभी नहीं थकूंगा। I never get tired of calling upon the name of the Lord. मैं तेरे नाम पुकारने में कभी नहीं थकूंगा। Never give up. मैं आपको इसको छोड़ूंगा नहीं। There is a great blessing in the Lord correcting us and chastening us. इसमें बड़े आशीष है कि जब प्रभु हमें ताड़ना देता है, हमें ठीक करता है। It could be of any kind the Lord will use in order to correct us. कुछ भी तरीके हो प्रभु अपनाता है ताकि हमें ठीक ठाक करें। The moment you are mature, जब हम प्रभु में परिपक्व हो जाते हैं, the Lord will use you mightily. प्रभु आपको अद्भुत प्रकार से प्रयोग में लाए। Unless you are not tried and tested with the maximum hurt, you will not be useful to the Lord. जब भी आपको एक अद्भुत रीति से आपको ताड़ना और शिक्षा दे के आप उस परिस्थिति में ना गुजरे हो, आप प्रभु के लिए उपयोगी नहीं बन सकते। So in order to be used of the Lord, we need to go through a lot of trials to learn what it means to exercise patience. प्रभु में उपयोग होने के लिए, काम आने के लिए हमें धीरज को सीखना अनिवार्य है। It is not necessary that everybody should go through that path. ये अनिवार्य नहीं है कि सबको इसी परिस्थिति से ऐसे होके जाना पड़ेगा। But the Lord has his own ways. लेकिन प्रभु के अपने अपने तरीके हैं। If you turn to the scriptures, जब आप प्रभु को वचन देखते हैं, there are many of them who have gone through serious hardships. बहुत सारे लोग ऐसे हैं बाइबल में जो बहुत मुश्किल को सामना करके गए हैं। See in verse 19, Psalm 34:19. 34 अध्याय के 19 पर, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको सबसे मुक्त करता है। From all the troubles and from all the afflictions. सब विपत्तियों से उसको मुक्त करता है।
The Lord is constantly watching over us. प्रभु हमें बार अपने नजर हमें टिकाए है। Recently I had a cataract surgery. कुछ दिन पहले मेरा कैटरैक्ट का जो ऑपरेशन हुआ My vision was not right. मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, So you had to go for operation. इसलिए मुझे ये सर्जरी करना पड़ा। And with that the eyesight is restored. और उस करने के बाद मैं अभी ठीक ठाक देखने लग गया। But I feel that which was original is not there. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो पहले ओरिजिनल जो था इस तरह का सब बढ़िया है नहीं। So that which is original in you, please maintain it. और जो आपके पास जो ओरिजिनल है, आपका जो खुद का जो है, उसको आप ध्यान देके रखें। Please be careful. उसके लिए आप सावधानी बरतें। Don't lose the originality of the salvation which has been given to you. जो उद्धार आपको प्रभु ने दिया है, उसको महत्व को आप ना खोएं। That newness of life, that bubbling joy which was given to you, don't lose it. जो जीवन का नयापन और वो आनंद जो आपको प्रभु ने दिया गया था, उसको ना खोएं। My daddy was in the Air Force. मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे। So he used to have a lot of badges. उनके बाद बहुत सारे लगाने का वाला बैजेस। So almost every second day or every day he used to, use brasso in order to make it, shine. जो हर दूसरे दिन वो उनको साफ किया करते थे एकदम। He used to use brasso, which will, make that medals shine. और वो जो एक ब्रासो पेपर आता है, उसको जो मेटल का जो होता है, धातु का, वो उसको चमकने लग जाता है। It has to keep shining. वो बोलते हैं उसको एकदम चमकने रहना है। In the armed forces, the dress has to be just spick and span. It has to be up to date. जब ये जो आर्म फोर्सेस है, इसमें आपके जो वर्दी है जो लगाते हैं, वो बड़ा एकदम ठीक ठाक होना होता है। Just as Brother Sekran said, let us turn to that verse. At that time we could not read it. 2 Corinthians chapter 3. जैसे भाई शेखरन बता रहे थे 2 कोरिन्थी 3 अध्याय में verses 2 and 3. 2 कोरिन्थी 3 अध्याय 2 और 3 पद। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पाटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पाटियों पर लिखी है। So we all need to be what is written over here. हाँ, यहाँ पे जो लिखा है हमको ऐसा ही होना है। That you are an epistle known and read of all men. ताकि हम पत्री हो, इसे जो सब लोग पढ़ सकें। So how much we should keep shining in our holiness, in our righteousness, in our purity, as Christ was, so also should we practice. जैसे कितना ही पवित्र हमें जीवन रखना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह में था, और हमको उसको इसमें लगे रहना है। In order to keep on polishing us, in order to make us shine brighter and brighter, the Lord allows a lot of chastening and trials in life. हमारे में चमकते रहने के लिए, हमारे पास सही रहने के लिए प्रभु ऐसे बहुत सारे ताड़नाएं दे के हमें ठीक ठाक करता है। See, if you read in 2 Corinthians chapter 1 verse 8. 2 कोरिन्थी 1 अध्याय के 8 पद। 2 कोरिन्थी 1 अध्याय के 8 पद। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। We were almost despair of our life itself. या हमारे जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। Such was the trouble and the pain and the difficulty through which we had to go. ऐसा संघर्ष और दुखमय और समस्या से हमको गुजरना पड़ा। But thank God the Lord has protected and given us all these epistles. लेकिन धन्यवाद हो कि प्रभु का कि उन्होंने उसको सुरक्षा दिया और आज हमारी सारी पत्री है। Philippians chapter 1. फिलिपी 1 अध्याय verses 21 and 23. फिलिपी 1 अध्याय 23 और 24 पद। 21 and 23. 21 और 23. 21 and 23. 21 272। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। 23। क्योंकि मैं दोनों के बीच इधर अंदर में लटका हूं, जो तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास चला जाऊं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। It is far better for us
ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। that if we can leave this world with all these problems and go to the Lord. इस संघर्ष में संसार को छोड़ के हम प्रभु के साथ चले जाएं। There is no problem which will not be addressed if the Lord comes. ऐसा कोई भी समस्या नहीं जो प्रभु नहीं देखेगा जो प्रभु आएगा। There is no problem which will be left without addressing for the children of God when the Lord comes. ऐसा कोई भी समस्या है जो प्रभु आएगा इसको प्रभु नहीं देखेगा। He will solve everything. वो सबको ठीक ठाक करेगा। Why? Because we will not be here in this flesh. क्योंकि हम शरीर में इस संसार में नहीं होंगे। We would be with the Lord. हम प्रभु के साथ होंगे। And this mortal shall put on immortality. ये मरणशाल शरीर को अमरता में परिवर्तित हो जाएगा। How will be translated? हमें परिवर्तन हो जाएंगे। We do not know how, but it will be. हमें नहीं पता कैसे, लेकिन ऐसा होगा ही। God has said it. प्रभु ने खुद बोला है। And therefore, with great joy, we need to wait for it and expect for that day. इसलिए बड़े आनंद के साथ हमें उस दिन की बाट जोना है। It is my heart's desire that we go to the Lord. मेरे हृदय की इच्छा है कि हम प्रभु के पास चले जाएं। The sooner the better. जितने जल्दी हो उतना ही अच्छा। But if the Lord still tarries, लेकिन प्रभु आने में थोड़ा देरी करता है, what should be our action and reaction in life? हमारे जीवन के क्या चाल चलन होनी चाहिए? How much should we keep ourselves enlightened and shining? कितना हमें अपने जीवन को चमकाते रहना है? How much we need to consecrate our lives to the Lord? कितना हमें प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित जीना है? How much careful we need to be? कितना हमें ध्यान देना अपने जीवन को? When everything is normal, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, when you have everything that you want in life, जब हमारे जीवन में सब कुछ जो हम जीवन में चाहते हैं वो है, the Lord still wants us to be careful. तब भी प्रभु चाहता है कि हम ध्यान दे, सतर्क रहें। In Deuteronomy chapter 2, व्यवस्था विवरण chapter 8, 8 अध्याय, Deuteronomy chapter 8, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, पेज नंबर 226। it talks about the children of Israel. इजराइलियों के बारे में बोल रहा है। How the Lord had enabled them in their wilderness journey. प्रभु के जंगल की यात्रा में प्रभु ने कैसे उनको सहायता पहुंचाया। See verse 3. 3 अध्याय, 2 and 3 you can read verses 2 and 3. 2 और 3 पर 8 अध्याय व्यवस्था विवरण। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे तूने और न तेरे पुरखों ने ही जानते थे वो तुझे को खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही वो जीवित रहता है। Read 4, 5 and 6 also. 4, 5 और 6। We all read it together. 4, 5 and 6. 4, 5 और 6 सब मिलकर पढ़ेंगे। Thy raiment wax not old upon thee, neither thy foot swell these 40 years. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God to walk in his ways and to fear him. परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करके वे उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। The Lord wants that we should constantly be reminded and chastened so that we may keep our hearts right with him. प्रभु हमें बार बार याद दिलाता है, ताड़ना देता है ताकि अपने हृदय को प्रभु के प्रति ठीक रखे। See verse 14 पर तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। It should not so happen that when you entered into the land and everything is sumptuous and good for you, ऐसा ना हो कि जब हम ऐसे भूमि में आए हमारे जीवन में सब कुछ सही हो, that we forget the Lord, तब हम प्रभु को भूल जाए, we forget his commands, और उसकी आज्ञाओं को भूल जाए, we forget that we need to walk in the narrow way. हम एक छोटे रास्ते से चलना है, हम ये भूल जाते हैं। The word of God says that we need to take the way of the cross.
हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि हमें ये कुश के मार्ग में से होके जाना है। While we were small, there was a poster. जब छोटे हम लोग थे तो एक पोस्टर लगा था। Even now that poster is available. आज भी वो पोस्टर है। Talks about the narrow way and the broad way. और वो छोटा रास्ता और बड़ा रास्ता का जो पोस्टर लगा हुआ The है, broad way leads to destruction. और बड़ा वाला रास्ता जो है वो नाश में ले जाता है, The highway leads to destruction. और जो चौड़ा रास्ता वो नाश में ले जाता है। But it is so wonderful to be in that highway. और वहाँ पे चलना ऐसा अद्भुत वैसा Whatever you want, whatever your mind wants, whatever your eyes want, everything is available. कुछ भी आपका आंख चाहे, आपका शरीर चाहे, आपका मन चाहे, वहाँ पे है पर्याप्त। We are presently in a world which is a highway. हम भी इस संसार में आज ये चौड़े मार्ग पे हैं। We need to exercise restraint, self-control, according to the word of God, through the Spirit of God that is dwelling in us. इसलिए हमें संयमता, धीरज के साथ हमें ये परमेश्वर के वचन के तहत हमें चलना है। We need to exercise restraint on all the members of our body to be in subjection to God's word. हमारे शरीर के सारे अंगों को हमें उसको अधीनता में रखना है कि ताकि वो प्रभु के वचन के अधीन में हो। We should never get puffed up. हमें उसको घमंडी नहीं होना। No matter what the Lord has given us, जो भी प्रभु ने हमें दिया है, we should be humble. हमें नम्र रहना है। So in order to make us humble, the Lord allows certain situations in life. इसलिए हमें नम्र करने के लिए प्रभु ऐसे कई परिस्थिति हमारे जीवन में लेके आता है। Proverbs 16 verse 18. नीति वचन 16 अध्याय के 18 पर। Proverbs chapter 16 verse 18. नीति वचन 16-18, पेज नंबर 784। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। So pride goeth before destruction. और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। So the Lord always makes some way for his children to be chastened, to be corrected, so that they are humble all the time. इसलिए प्रभु ऐसे होने देता है, प्रभु ताड़ना देता है, परिस्थिति लाता है ताकि हम हमेशा नम्र बन पाए। Let me give you a very small example. एक छोटा सा उदाहरण है। I had almost finished my college. जब मैंने कॉलेज खत्म किया था, and then I got a job, और मुझे एक नौकरी मिला, and then I purchased a new shoes, और मैं एक नया जूता मैंने खरीदा, and then a new pant. नया पैंट मैंने खरीदा। That pant was from Lal Killa. It was second hand one. वो पैंट लाल किला में सेकंड हैंड से मिला था। Because that was all you could afford at that time. उस समय हम उतना ही खर्च कर पाते थे। And a new shirt. और नया शर्ट। I was feeling so nice. मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा था। And then got ready to go to the house of God. हाँ, प्रभु बोला कि आप प्रभु के भवन में जाओ। So my habit was whenever I buy something new, I should first wear it to the house of God. और मेरा ये आदत है कि जब भी मैं कुछ नया खरीदूं, मैं पहले बार प्रभु के भवन में पहनूं। So on that day, as usual, in the DTC bus. और मैंने उन दिनों में DTC बस में चढ़ के गया। You had to run and get into the bus. और वो DTC बस दौड़ के उसको पकड़ना पड़ता so था। that you reach on time to the house of God. ताकि प्रभु के भवन में समय में पहुंच पाए। And it was a birthday time. It was a birthday time. अब बर्थडे का समय था। You know what happened? क्या हुआ? I fell down. अब मैं गिर पड़ा। My shirt tore off. और मेरे शर्ट वो फट गए। My pant also got torn. और मेरा पैंट भी फट गया। And my shoes also got scratched. और मेरा वो जूते वो भी स्क्रैच हो गया। Then I was sitting and thinking. अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ। I was feeling so happy from within. इतना अच्छा मुझे अच्छा खुश now look, I am looking so good. अब आप देखो मैं ऐसा हालत है। I have earned so much. अब मैंने इतना कमाया। Now I bought a new dress. नया कपड़े मैंने खरीदे। And that was the result of it. और ये इसका परिणाम तो ये है। The intentions were good. मेरा सोचने का तो ठीक ही था। But the mind, it was puffed up. और लेकिन हो सकता है मेरे मन में कुछ ऐसा घमंड आया हो। So the Lord deals. इसलिए प्रभु उसको देखता है। That is how I considered for myself at that point of time. इसलिए उस समय में मैं अपने आप को इस तरह से जानूं। So Lord, forgive me. प्रभु मुझे क्षमा करें। Whatever I earned is because of the health that you have given me. जो कुछ मैं आज कमाया क्योंकि आपने स्वस्थ दिया, इसलिए इसके Otherwise I would not have earned anything. इसलिए मैं कुछ भी नहीं कमा पाता। I would not have studied.
मैं पढ़ता भी नहीं, I would have lost my education. मैं मेरा शिक्षा भी मैं नहीं लेता, But you kept me safe, healthy and sound that I could do all this. प्रभु मुझे भला चंगा रखा ताकि प्रभु मैं ऐसा कर पाऊं। Be humble all the time. इसलिए हमें नम्र रहना हमेशा। Do not be proud of anything. अपने जीवन में कुछ भी घमंड ना रखें। If at all you are proud, अगर आप में घमंड है हमारा, be proud that you know the Lord Jesus Christ. इसमें घमंड रखें कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। And if you know the Lord Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, you will allow yourself to be crucified. आप अपने आप को क्रूस में समर्पित कर देते हैं। You will give yourself to be chastised. आप अपने ताड़ना होने के लिए प्रभु में No matter what correction comes, you will be willing. कितने भी ताड़ना प्रभु आपको देता है, प्रभु And you will उसको दे दे। still be thanking the Lord. और उसके दौरान भी आप प्रभु को धन्यवाद दिया। Lord, there is none like unto thee. प्रभु आप जैसे और कोई आपके तुल्य है ही नहीं। That is the love with which God has loved us. इसे प्रेम से प्रभु ने हमें प्रेम किया है। When the Lord corrects us or chastens us, let us submit ourselves to the Lord. जब प्रभु हमें ताड़ना देता है, ठीक ठाक करता है, हम प्रभु में और समर्पण हो जाएं। See 1 Peter chapter 5, पहला पत्रस 5 अध्याय, verse 5, the second portion. पहला पत्रस 5 अध्याय के बाद 5। 1 Peter chapter 5, verse 5, the second portion. हाँ, 5 के 5 पर 327 पे है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। So the Lord wants you to be humble all the time. इसलिए प्रभु चाहता है कि हम हमेशा नम्र रहें। See verse 6. 6 पर, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। If the failure is the only way to make you bend, अगर आपका जो गिरना, जो आपका हार है, हार एक ही तरीका जो है in order to make you bend, ताकि आपको नम्र बनाए, if failure is the only method, अगर हार एक ही तरीका है, the Lord will not hesitate to use it. प्रभु आपको वो नहीं करता, उसको प्रयोग में लाने में नहीं सोचता। He will do anything in order to make you bend. हाँ, आपको कुछ भी प्रभु करता है ताकि आप नम्र हो जाएं, so that we may be humble in the Lord's presence all the time. ताकि परमेश्वर के उपस्थिति में आप और हम हमेशा नम्र हो जाए। So never be ashamed to be made humble at any point of time. इसलिए जब प्रभु हमें नम्र करता है, ऐसे परिस्थिति लाता है, हमको इसको गलत ना समझें। Galatians chapter 4, गलाती 4 अध्याय, verses 28 and 29. 4 अध्याय 28 और 29, 262 पेज नंबर पे है। 4 अध्याय 28 29। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। Abraham made one mistake. अब्राहम ने एक गलती की, and that mistake which he did is causing problem and harm even today. और वो गलती का खामियाजा आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है। Because he produced Ishmael when the Lord had promised for Isaac. जब प्रभु ने इसहाक का प्रतिज्ञा किया था, अब्राहम ने इस्माइल को जन्म दिया। And we see the consequence of that even today. और उसके परिस्थिति वो इस्माइल का आज भी हम संसार में देखते हैं। Anything of the flesh will constantly be against the spirit. कुछ भी जो शरीर से है, वो हमेशा आत्मा के खिलाफ आता है। What is the extent to which you are able to exercise the Spirit of God to work in you, so that the works of the flesh is silenced? इतना हमें आत्मा में हम इतना बढ़े ताकि शरीर की जो अभिलाषा है, काम है, वो कम हो जाए। Feed the Spirit of God in you. जो आत्मा की बातों को खिलाए, जो आपके हैं। Feed it as much as possible, so that the flesh will not have any method of overpowering you. आप आत्मा को, ये परमेश्वर की आत्मा को हमें अपने आप में इतना खिलाएं ताकि वो शरीर में हमको जीतना हो। So it is always good to be engaged in fellowship with the Lord. इसलिए हमेशा अच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ संगति में रहें। The Lord allows various methods in order to make us wise. बहुत सारे परिस्थिति समस्या प्रभु लेके आता है, उपयोग करता है ताकि हम ज्ञानी बन पाएं। See Proverbs chapter 26 verse 12.
नीति वचन 26 अध्याय के 12 पद। Proverbs 26 and verse 12. नीति वचन 26 अध्याय के 12 पद। 797 है, 797 पेज पे 26:12। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। And don't be wise in your own selves. अपने दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान ना समझे। Commit your things to the Lord. अपने सब कार्यों में प्रभु को समर्पित करे। Seest thou a man wise in his own conceit? There is more hope for a fool than him. Verse 12. यदि तू ऐसा मनुष्य जो देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही के है। So the scripture is very clear. इसलिए प्रभु का वचन साफ कहता है, If you need to be wise, यदि हमें बुद्धिमान बनना है, exercise your wisdom in the fear of God. आपका ये परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर के डर में हम लगाएं। There are very many methods in which the Lord may want to mature our lives in Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व करने के लिए प्रभु ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाता है। You can just see one small example. Luke chapter 22 verse 31 and 32. लूका 22 22 अध्याय 31 and 32. लूका 22 अध्याय 31 और 32 पर। लूका 22 123 पद नया नियम पे। लूका 22 31 और 32। समौन है समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। So Peter was almost admonished in front of everybody. ये सबके साथ में पतरस को प्रभु को डांटना पड़ा। Get thee behind me, Satan. शैतान मेरे पीछे हो लो। And what you're speaking is the wisdom of this world. जो तू बोल रहा है ये संसार के ज्ञान के हिसाब से बोल रहा है। I want you to be my disciple. मैं चाहता हूँ तू मेरा चेला बन। You have not understood the purpose. तूने उसके उद्देश्य को नहीं समझा है। Therefore correct yourself. इसलिए इसको ठीक ठाक कर। Because of those kind of corrections which Peter had encountered in his life with the Lord, जब पतरस ने इस तरह के प्रभु से ठीक ठाक करवाया, प्रभु ने कराया। when the Lord told him, before the cock crows twice, you shall deny me thrice. ये जो मुर्गा भासने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। He said, no, it is just not possible. I will be with you even till death. मैं प्रभु ऐसा नहीं होगा, मैं तो आपके मृत्यु तक मैं मरना भी पड़े मैं तैयार हूँ। But he was very far away from that. लेकिन वो मृत्यु से तो बहुत दूर वो था। What the Lord said was proved in his life. जो प्रभु ने कहा उसके जीवन में वो पूरा हुआ। Before the cock crows twice, you will deny me 3 times. जब जो मोर 2 बार भासने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार कर चुका होगा। He had to face all those shame and suffer all those things. ऐसे परिस्थिति में होके उसको जाना पड़ा। To realize. ये समझने के लिए। And then the Lord says, when you are converted, feed my sheep. जब जब फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। The Lord devises different methods. प्रभु को बहुत सारे प्रयोग में लाता है तरीके। Never get disturbed or discouraged when the Lord has to chasten or to correct you. इसलिए हमें प्रभु जब हमें ताड़ना देता, ठीक करता है, हम निरुत्साहित ना होए, दुखित ना होए। The Lord is constantly praying for us, pleading for us on the right hand of the Father. प्रभु हमारे लिए अपने पिता के दाहिने हाथ में हमेशा प्रार्थना किया कर रहा है। We are all praying, earnestly praying. वो प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग। We are all praying earnestly. हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। We have all kinds of prayers. बहुत तरह के प्रार्थनाएं हैं। But remember, the Lord also is pleading for righteousness on the right hand of the Father. इसलिए याद करें हमारे प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता के दाहिने हाथ में धर्मी के लिए दुहाई दे रहा है। Satan is always accusing and standing as an accuser, accusing us before the Lord. और शैतान भी वहां पे खड़े होके हमेशा उसको दोष लगा रहा है। But then the Lord says, no, I find no fault in him. लेकिन प्रभु कहता है कि नहीं, मैं उसमें कोई गलती नहीं देखता। Because when the Lord looks at us, जब प्रभु हमें देखता है, He looks at us through His Son Jesus Christ. तब अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें देखता है। He is the head. वो सिर है। We are the members of His body. हम इस शरीर के उसके शरीर के अंग हैं। He looks at us as members of the body of Christ, of which He is the head.
और वो हमें इस तरह से देखता है कि अपने शरीर के खुद के अंग के द्वारा जिसका स्वयं सिर वो है। He wants us to be holy all the time. वो हमें चाहता है कि हम अपने जीवन पवित्र रखें। 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians 7 अध्याय। 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians 7 अध्याय 251 पेज नंबर पे है। Verses 1. 2 Corinthians 7 अध्याय 1 पद। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा और सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Perfecting holiness in the fear of God. आप पवित्रता होते हुए सिद्ध हुए। We need to perfect holiness in the fear of God in our lives. हम परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Let's read verse 10 and 11. इसी अध्याय के 10 और 11। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है कि जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उसे पछताना न पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धून और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुम में सब प्रकार से ये सिद्ध कर दिया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। So the Lord wants us that we should always sorrow after a godly sort. इसलिए हम प्रभु We should sorrow after a godly sort. हम एक भक्ति का शोक करें। It should be godly. वो भक्ति रहित का शोक हो। We should regret, we should feel sorry as a godly person. आप इस तरह से पश्चाताप करें कि आप में वो धार्मिकता हो, भक्ति हो। The Lord will certainly help us. प्रभु हमें सहायता करेंगे। And then there's one more thing that the Lord will want us to do through corrections which He brings. एक और बात प्रभु इस ताड़ना लेके हमें करना चाहता है। We need to be dependent on one another. हम एक दूसरे पे निर्भर रहें। We cannot live alone. हम अकेला नहीं रह सकते। As a born again child of God, जैसे प्रभु का उद्धार पाया हुआ बच्चा, as a baptized person, ऐसा बपतिस्मा लिया हुआ बच्चा, you need to show yourself as one with the house of God, with the people of God. आप परमेश्वर के लोगों के सामने परमेश्वर के भवन में दिखलाना है आपको। See Ephesians chapter 4. इफिसी 4 अध्याय verses 15 and 16. इफिसी 4 अध्याय 15 और 16। Ephesians chapter 4 verses 15 and 16. इफिसी 4 अध्याय 15 और 16 पेज नंबर 267 पे। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ को सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। Every member needs to contribute in this growth. हर अंग को इस बढ़ाई में, उन्नति में भाग लेना है। All of us. हम सब लोग। Those who are not here, हम जो यहाँ पे नहीं हैं, they are at homes, वो घरों में हैं, or in their duties, और वो कामों में हैं, or in other compulsions, और कोई और अनिवार्य काम में है। All of us need to contribute to be dependent on one another to make this grow. हम हर एक को एक दूसरे पे निर्भर करना है, सहायता पहुंचाना है ताकि ये पूरे शरीर बढ़ पाए। The Lord is looking for the church as one body. इसलिए प्रभु ऐसे कलीसिया को ढूंढ रहा है जो एक शरीर हो, that we might all be bound together in the love of Christ. ताकि हम एक दूसरे परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे पे निर्भर रहे। We admit we have limitations. हमारे पास क्षमताएं हैं। We admit that we have limitations. हमारे पास, हम मानते हैं कि हमारे पास कुछ खामियां हैं। We have a lot of shortcomings. बहुत सारे खामियां हमारे जीवन में हैं। But despite all that, उसके बावजूद भी the heart's desire is, Lord, help us to overcome.
हमारे हृदय का ऐसा होना चाहिए कि प्रभु हमें उसमें में उत्तीर्ण हो जाए। Help us to be good examples. मैं अभी अच्छा उदाहरण बन सकूं, Help us to walk in your ways. आपके राह में मैं चल सकूं। Help us, O Lord, to love thee with all our heart and soul and strength. प्रभु आपके पूरे हृदय, संपूर्ण मन और तन से मैं आप तुझे प्रेम कर सकूं। When I am tried, I shall come forth as gold. जब मुझे परखा जाएगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। You can go home and Google and search how gold is tried. आप जाके घर में देख सकते हैं कि एक सोने को कैसे परखा जाता है। I mean, that is how the Lord wants to purify us. इस तरह से प्रभु हमें पवित्र करना चाहता May है। the Lord bless His word. प्रभु इस वचन में आशीष। Shall we pray?